स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है, पार्ट 1, जिसमें विल सी सम टर्म्स एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर. सो फर्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स, दिस आर if 3 or more points lie on a same line then they are called as collinear points. यहाँ पे देखो 3 or more points जब एक ही लाइन में लाई करेंगे, दैट इज ए बी सी डी, दीज पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ सेम लाइन, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तीनों भी चारों पॉइंट्स, सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इफ 3 or more points do not lie on the same line then they are called non collinear points. यहाँ पर देखो पॉइंट्स बी ए बी सी, यहाँ पे क्या है, बी सी एक लाइन में लेकिन बट ए इज नॉट ऑन द लाइन बी सी, बी सी पे नहीं है, सो दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. देन वील सी टाइप्स ऑफ एंगल्स. सो फर्स्ट इज acute angle. Acute angle is an angle whose measure is greater than 0 degrees but less than 90 degrees. It is called acute angle. Then obtuse angle, an angle whose measure is greater than 90 degrees but less than 180 degrees. It is called as obtuse angle. Then right angle, an angle whose measure is exactly 90 degrees. It is called right angle. Then straight angle, an angle whose measure is 180 degrees. जिसका मेजर 180 डिग्रीज रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट एंगल. दिस ये है, इसका पूरा 180 डिग्री मेजर है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट एंगल. दिस इज अ राइट एंगल, जिसका मेजर 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड एज राइट एंगल. देन रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज greater than 180 degree and less than 360 degree. So an angle whose measure is greater than 180 degrees and less than, तो greater than 180 ये आएगा, so this is reflex angle. Greater than 180 but less than 360 is reflex angle. Then complementary angles. Complementary angles means two angles whose sum is 90 degree. कोई भी दो एंगल अगर उसका सम 90 डिग्री आता है तो वो एंगल्स को हम बोलेंगे that two angles are called as complementary angles. Then that angles are said to be complementary angles. Then supplementary angles, two angles whose sum is 180. दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री आएगा, these angles are called as supplementary angles. उस एंगल को हम बोलेंगे that angles are called as supplementary angles. यहाँ पे एक डेफिनेशन बताना था आपको, एंगल, वो आप देख लीजिए पहले. यहाँ पे एंगल मीन्स an angle is formed when two rays originate from same end point. An angle is formed when two rays originate from same end point. The two rays making an angle are called as arms of the angle and the end point is called as the vertex of the angle. क्या बोला यहाँ पे डेफिनेशन? an angle is formed when two rays, ये दो rays है AB and AC. These are the two rays which originate from the same end point. एक ही end point से आ रहे हैं दोनों भी rays, A से, ठीक है. So AB and AC are these two rays which originate from the same end point A and the same end point A is called as the vertex. और ये जो दो rays है AB and AC, these are called as the arms of angle. इसको बोलेंगे arms of angle. Now we'll see adjacent angles. Next is adjacent angles. Adjacent मतलब आजू बाजू वाले एंगल्स, ठीक है. सो टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ, दो एंगल्स को हम एडजेसेंट कब बोलेंगे? इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन आर्म एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म. यहाँ पे देखो, टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स. ये यहाँ पे देखो, ये दो एंगल है ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं. कैसे इसको पहचाना है एडजेसेंट एंगल है? ये देखो, ये दोनों भी एंगल में एक ही वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स बी एंड द कॉमन आर्म. दोनों भी एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी को एक ही कॉमन आर्म है बी डी. बी डी इज कॉमन टू बोथ द एंगल्स, ठीक है. एंड द नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स कौन से हैं? बी ए एंड बी सी. दीज आर नॉन कॉमन आर्म्स which originate from the, which are on the opposite side of common arm. common arm के opposite side में है. so these angles are called as adjacent angles. adjacent angles में common vertex रहेगा, common arm रहेगा
और ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में रहेंगे, ठीक है। सो एंगल ABD एंड एंगल DBC आर द टू एडजेसेंट एंगल्स, और वी कैन से एंगल ABC इट इज सम ऑफ एंगल ABD प्लस एंगल DBC. So angle ABC it is sum of angle ABD and angle DBC. Now next we will see the linear pair of angles. Linear pair of angles is if the non-common arms BA and BC form a line, they are called linear pair of angles. अभी यहाँ पे देखो, ये दो नॉन कॉमन आर्म्स थे BA and BC. These are the two non-common arms. यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब ये नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन फॉर्म करेंगे, ये देखो यहाँ पे दोनों भी नॉन कॉमन आर्म्स ने एक लाइन फॉर्म किया है BA एंड BC. दे व्हेन दे फॉर्म अ लाइन देन दीज एंगल्स, द एंगल्स विच आर फॉर्म, दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हुए यहाँ पे, कौन से, ABD एंड एंगल DBC, देन दे आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल. उसको हम बोलेंगे they are called as linear pair of angle. तो ये दो एंगल ABD and एंगल DBC they are called linear pair of angle. और लीनियर पेयर में क्या रहते हैं, ये देखो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बने हैं ये दोनों भी, तो ये दोनों भी एंगल का सम रहेगा 180 डिग्री. दैट इज एंगल ABD एंड एंगल DBC इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. इसमें लीनियर पेयर में दोनों का भी एडिशन 180 रहता है. The next is vertically opposite angles. Vertically opposite angle means when two lines AB and CD intersect each other at point O. यहाँ पे देखो दो लाइन AB और दूसरी लाइन है CD, ये दोनों भी इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट O. Intersect means they are crossing each other at point O. Then two pairs of vertically opposite angles are formed. ठीक है, दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं. पहला पेयर है एंगल AOD एंड एंगल BOC. ये एक पेयर हो गया जो मैंने लाइक मार्किंग से शो किया है. एंगल AOD एंड एंगल BOC, दिस इज वन पेयर. और दूसरा वर्टिकली अपोजिट पेयर है AOC एंड BOD, ये दूसरा पेयर हो गया. ठीक है, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब फॉर्म होता है, when two lines they intersect at point O, then pair of vertically opposite angles are formed. ठीक है, the next is we'll see some axiom. So axiom means the statements which are already proved are called as axioms. axioms मतलब जो statement already proof किए हुए, जिसको हमको proof करने की जरूरत नहीं है, और the proven statement is called axiom. जो proof statement है, जो already proven statement है, that is called as axiom. So we'll see some axioms related to this. So इसमें first axiom है axiom 6.1. It says if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degrees. क्या बोल रहा है, if a ray, यहाँ पे देखो ये रे है BD, इट स्टैंड्स ऑन अ लाइन. ये रे BD कौन से लाइन पे खड़ी है, AC लाइन पे खड़ी है. ठीक है, तो हियर इन फिगर रे BD स्टैंड्स ऑन लाइन AC. तो क्या बोल रहा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, मतलब ये दो एडजेसेंट एंगल का सम, दैट इज एंगल ABD एंड एंगल DBC, ये दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री. जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, अगर लाइन पे आ रहा है तो दोनों में एंगल का सम 180 रहेगा. लेकिन उसमें हम कंडीशन क्या लगाएंगे, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल. तो क्या है एग्जियम 6.1, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जियम. ये क्या है एग्जियम, इफ अ रे, हियर अ रे BD stands on a line, if a ray BD stands on a line, then the sum of two adjacent angles is 180 degrees. तो यहाँ पे कौन सा adjacent angle है, एंगल ABD प्लस एंगल DBC, ये दोनों का एडिशन है इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड दे आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ठीक है, देन नेक्स्ट इज एक्सियम 6.2 which is a converse statement of axiom 6.1. इसका कॉन्वर्स है, इट सेज
इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्रीज है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। तो क्या होगा यहाँ पे, नॉन कॉमन आर्म्स दे विल फॉर्म अ लाइन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर यहाँ पे दो एंगल का सम अगर 180 है, यहाँ पे एंगल लिया हमने, एंगल ABD एंड प्लस एंगल DBC, अगर ये दोनों भी एंगल का सम 180 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिया है आपको कि दोनों भी एंगल का सम 180 दिया है, इसका मतलब क्या है, AC इज अ लाइन। इसका मतलब रहेगा कि AC जो है इट फॉर्म्स अ लाइन, मतलब टू नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। कब, व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्रीज। दैट इज द एक्सियम 6.2, दैट इज द कन्वर्स ऑफ 6.1। देन थ्योरम 6.1, थ्योरम मीन्स हमको प्रूफ करना है। थ्योरम में, एक्सियम में प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट, बट इन थ्योरम वी हैव टू प्रूव। तो यहाँ पे क्या दिया आपको थ्योरम में, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या बोल रहा है, इफ टू लाइन्स, तो यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, लाइन AB एंड लाइन CD, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, देन the pair of vertically opposite angles so formed are equal। तो हमको दिखाना है एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, और दूसरा वर्टिकली पेयर है AOC इक्वल्स टू एंगल BOD, ठीक है, हमको इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए हमने प्रूफ लिया है। अभी देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे जो रे OA जो रे है, दिस रे OA कौन से लाइन पे स्टैंड है, लाइन CD। तो रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD। तो एक्सियम 6.1 क्या बोलता है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, और सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर, देन द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब ये दोनों भी एंगल का सम 180 आएगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्रीज लीनियर पेयर। वी कॉल दिस इक्वेशन 1। इसमें देखो, अभी हमने इसके पहले लिया था CD लाइन पे लिया है, CD लाइन पे रे को स्टैंड्स CD पे रे OA स्टैंड्स है, रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD। अभी लाइन AB पे आप लोग दूसरी बार AB पे लेना है, तो AB पे कौन सी रे स्टैंड्स है, OD या फिर OC, कोई भी ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे लिया है OD, तो हियर रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB, हियर रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB। तो सम ऑफ एंगल AOD एंड BOD इक्वल्स टू 180 डिग्रीज बाय लीनियर पेयर। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्रीज लीनियर पेयर, वी कॉल दिस इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी सी RHS ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल। तो RHS अगर इक्वल है तो उसके LHS भी इक्वल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इक्वेट करना है आपको, इक्वेटिंग LHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू, इक्वेट करना है आपको, इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। दोनों के LHS को हमने इक्वल किया है। नाउ यहाँ पे एंगल AOD सेम है, तो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमने इधर ही कैंसिल कर दिया। सो दस वी गेट एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। सिमिलरली हम दूसरे रेज लेके भी प्रूफ कर सकते हैं दैट एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। तो सिमिलरली आपको दूसरी कंडीशन लिख देनी है, सिमिलरली एंगल AOD इक्वल्स एंगल BOC। थैंक यू।